किस बाप को गर्व नहीं होगा कि उसका बेटा आज कदम रख रहा है उस परंपरा में जो 80 साल इस देश को मनोरंजन दे रहा है। तो पिता होता वो तो यही चाहेगा कि वो घर से ना जाए और मैं उनके साथ ही उसके साथ ही रहूँ, उसकी शादी कर दूँ, मगर वो फिल्मों में काम करना चाहती है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। I've known them from before and I've literally seen Ranveer and Sonam, both of them groom in front of me and become like this, today. It's a surprise, and I'm sure that people are going to like my किरदार। पिक्चर तो देखने के लिए होती है ना, पिक्चर के बारे में कहानियाँ बताएंगे तो मतलब क्या, फिर लोग देखने क्यों आएंगे? तो थोड़ा राज रखो, कैसी बन रही है पहले देखे। I think to wish the Kapoors all the best. That is the Raj Kapoor family as well as the Mr. Surinder Kapoor's family, Anil's daughter. So far, everybody's been successful in their families, and I don't see why this couple won't be. See, I worked with both of them in the film, and I think both of them are outstanding. As Sonam and Ranveer, they're both phenomenal. It is. Sanjay Leela Bhansali as a director is absolutely fantastic. As far as performances go, I mean, he takes the best performances out of people. And since Sonam and Ranveer were his assistants in his earlier film, I think it was Black. Right. And after that, he selected them for the movie, and he did a 1-year workshop with them. So now you can imagine how fabulous they're going to be in the movie. It's a surprise, and I'm sure that people are going to like my Your take on the music kirdar in the film. Music of the film? Your take on the music? My take? I haven't. I've seen bits and portions of the film, and I think that if I think it is like if you make an animated film, I don't think they can make an animated film bigger than Sanjay Leela Bhansali's made this film. It is superb. It's a visual delight, and as far as his intense scenes that go with intensity and romance and the visual, I think he's unbeatable. He's the only one living legend as far as directors are concerned in the industry. I think Richa has a wonderful voice. I think her voice is tremendous, and the kind of voice quality that comes out from Richa, I think it's outstanding. And today what she did was completely, because you are on stage and it's like there's no music, and I think she's outstanding. Like who am I to comment? Ma Saraswati Ma ka blessing hai un par. It's because I always believe that singers and musicians have so much blessing from Ma Saraswati that it's unbelievable. It's something that is God gifted, and Richa is one of them.
For me, my feeling working with Sonam and Ranbir is different because I've known them from before, and I've literally seen Ranbir and Sonam, both of them groom in front of me and become like this, today. किस बाप को गर्व नहीं होगा कि उसका बेटा आज कदम रख रहा है उस परंपरा में जो 80 साल इस देश को मनोरंजन दे रहा है। पृथ्वीराज कपूर साहब ने ये नियम रखी थी, राज कपूर साहब, शमी कपूर, शशि कपूर, फिर रणधीर कपूर, मैं ऋषि कपूर, राजीव कपूर, फिर मेरी मैटरनल साइड प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, मेरा एक मासड़ है प्रेम चोपड़ा, फिर रणधीर कपूर साहब की बच्चियां करीना, करिश्मा। अब वक्त आ गया कि मैं अपना बोलते ना पीड़ा खोलूं। यही आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि आप वही आशीर्वाद, वही प्यार दीजिए कि ये लड़का वो भी उस काबिल बने कि उसके जो बुजुर्गों ने 80 साल से आप लोगों की खिदमत में पेश किया है। ऐसा तो होता है, ऐसा तो अक्सर होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा तो होता है। जो मैंने अभी कहा कि इट्स ऑल नाउ अप टू द ऑडियंसेस टू यू सी, मेरे लॉन्च करने से कुछ नहीं, लड़के में काबिलियत होनी चाहिए ना। अगर रणवीर अच्छा है तो है अच्छा, अगर अच्छा नहीं है तो वो नहीं अच्छा है। जी, अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो या किसी का बेटे हो। इफ़ यू आर गुड यू आर गुड, इफ़ यू आर नॉट गुड यू आर नॉट गुड। So I feel, in a strange way, I feel immense pride in the way they've turned out, and I feel extremely happy that today I'm part of the launch of the music, and that I've introduced Ranbir, and of course Salman introducing Sonam. So I feel so happy being part of this. बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाहता तो नहीं हूँ कि वो जाए आप सबके सामने, मगर वो चाहती है। और अगर अभी उसने और इतना इस फिल्म में काम कर रही है और काम करना चाहती है, तो हमेशा जो पिता होता है वो तो यही चाहेगा कि वो घर से ना जाए और मैं उसके साथ ही रहूँ, उसकी शादी कर दूँ। मगर वो फिल्मों में काम करना चाहती है, फिल्मों में काम कर चाहती, तो मैं उसकी खुशी में मेरी खुशी। मैंने पहली बार देखा, मगर इस पर्दे पर जो गाना, जो सावरिया गाना, समथिंग इट्स कम्प्लीटली मैजिकल। जादू है पर्दे पर, जादू है, एक किस्म का भोलापन है, एक किस्म की इनोसेंस है, एक किस्म की एक ऐसा म्यूज़िक, ऐसे कलर्स, और काफ़ी सालों के बाद एक ऐसी चीज़ आ रही है जहां आपको शराफत कूट के हर फ्रेम में नज़र आ रही है। मेरी बात छोड़ो, फिल्म सावरिया की बात करो, रणबीर की बात करो। मैंने रणबीर का काम देखा, मैंने ये गाना देखा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक 6 फुट का राज साहब 6 feet tall राज कपूर इज बॉर्न। पिक्चर तो देखने के लिए होती है ना, पिक्चर के बारे में कहानियाँ बताएंगे तो मतलब क्या, फिर लोग देखने क्यों आएंगे। तो थोड़ा राज रखो, कैसी बन रही है पहले देखे, क्या उस पर कॉन्सेंट्रेशन करे। तो बड़ी बातें करके बिकने में कोई फ़ायदा है नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे तो पिक्चर रिलीज़ करने को भी कभी दिल नहीं करता कि नहीं रहने दो, पकड़ और भी रहने दो। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म रिलीज़ होने के वक्त ही उसके बारे में बोलना चाहिए। No, the whole film is like a painting. The whole film is being worked out very lyrically, and we've all worked for it. Umang Kumar का art direction, रविचंद्रन की cinematography, अनुराधा के costumes. तो मुझे लगता है सब लोगों ने मिलजुल के उसको, जो उस पर मेहनत की हम लोगों ने, कि स्क्रिप्ट को कैसे we will now translate it into something that we've never seen before. एक अलग तरीके से एक पॉपुलर फॉर्मेट को एक विजुअल डिग्निटी दे हम, तो उसके ऊपर काम किया, मेहनत की बहुत 2 साल। तो फिर अगर आपको पेंटिंग लगती है तो थैंक यू वेरी मच। देखिए हम दिल में मैंने सारे कलर्स यूज़ किए, फिर मैंने देवदास में थोड़ा रेड पर कॉन्सेंट्रेट किया, ब्लैक में ग्रे और ब्लैक थे,
और इसमें क्या मालूम सावरिया मतलब कृष्णा है, कृष्णा का मतलब मोर पीच रंग है, तो जितना ब्लू और ग्रीन का हमने इस्तेमाल किया उतना वो मुझे लगता कि सही था, क्योंकि वो सब्जेक्ट को अच्छा तरीके से पेश करने को हेल्प। सावरिया के बारे में तो सावरिया देखेंगे तभी तो, वरना मैंने इन्होंने जैसे पूछा ना कि बात क्यों नहीं करते, तो पहले से बात करेंगे तो देखने का मजा क्या है। सावरिया क्या है वो आके देखिए आप। म्यूजिक इज ब्यूटीफुल। देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। और देखिए नवंबर में जब फिल्म रिलीज़ होगी हम सब जाएंगे देखेंगे, और ऊपर वाले से दुआएं करेंगे कि सफलता मिले फिल्म को, और रणबीर को, सोनम को, और लोगों का मनोरंजन करें। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मेलोडी ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, और वही प्रार्थना करूँगा कि मेलोडी हमेशा जारी रहे, अच्छे अच्छे संगीतकार अच्छे अच्छे गाने बनाएं, और पुराने ज़माने के तरीके से और अच्छा अच्छा म्यूज़िक बने आज के ज़माने के तौर से। केवल इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा लगा जैसे एक सपने को सच होते जब कोई देखता है तो उसको कैसा लगता है, लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनके लिए लफ्ज़ नहीं होते। मुझे बहुत खुशी हुई, और हर अच्छे टेक्नीशियन का एक सपना होता है ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना, ऐसी टीम के साथ काम करना, ऐसे स्टार्स के साथ काम करना, और मेरे साथ भी हुआ। जैसा मैंने कहा कि बड़े लंबे सफ़र के बाद ये मौका मिला। मैंने तकरीबन सारे लोगों के साथ काम किया, मगर संजय भाई मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं। और इस फिल्म के साथ सबसे अच्छी बात रही कि इतनी दो महान फैमिलीज से बिलोंग करने वाले दो बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया, उनके लिए गाना लिखना था, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी दिमाग पे। और मोंटी शर्मा जिन्होंने पहली बार काम किया इस फिल्म में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, उनके साथ काम करना सब कुछ नया था, मगर बहुत अच्छा लगा। और सबसे खुशी इस बात की है कि संजय भाई के साथ काम करके मैंने ये जाना कि एक आदमी जो काम जानता है उसके साथ काम करना, और एक आदमी जो काम नहीं समझता उसके साथ काम करने का फ़र्क क्या है। हाँ, बाकी सारे रोमांटिक गाने हैं फिल्म में, और रोमांस के जितने भी अंग हो सकते हैं, कहीं दर्द है, कहीं तन्हाई है, कहीं रोमांस है, कहीं आवारगी है, कहीं बिंदासपन है, मतलब कोई ऐसा कलर नहीं है। और संजय भाई को एक बड़ी प्यास थी, क्योंकि ब्लैक में म्यूजिक नहीं था।